औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बच्चों और बच्चियों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे फरमाया था कि आने वाली मेरी दूसरी वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको टाइपराइटर के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। टाइपिंग कंप्यूटर साइट पे जाने से पहले आपको सबसे पहले टाइपराइटर की हिस्ट्री जानना बेहद ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए ये टाइपराइटर कब ईजाद हुई। इसके बगैर एक चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री का आपको कुछ पता ना हो, फिर मज़ा ना आएगा। तो अपनी वीडियो में जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके और दोस्त भी इस नॉलेज से, इस स्किल से फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द टाइपराइटर फर्स्ट इन्वेंटेड। टाइपराइटर की पहली इजाद कब हुई? तो इंग्लिश में मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे जो फॉरेनर हैं वो भी थोड़ा बहुत समझ सकें कि जिस किसी ने टाइपराइटर को इजाद किया, हम उसकी मेहनत को नहीं भूल सकते, उसकी काविश को नहीं भूल सकते। द फर्स्ट अमेरिकन patent for what might be called a typewriter was granted to William Aston Burr of Detroit in 1829. However, the breakthrough came in 1867 when Christopher Latham Shawley of Milwaukee, with the assistance of his friends Carlos Gladden and Samuel W. Soil, invented their first typewriter. दोस्तों, भाइयों, बच्चों, जिसको टाइपराइटर कहा जा सकता है, इसके लिए पहला अमेरिकन पैटर्न 1829 में डेट्रॉइट के विलियम एस्टन बर्ग को दिया गया। ताहम ये पेशरफ इस वक्त हुई जब 1967 में मिल्वॉकी के क्रिस्टोफर शॉलिस ने अपने दोस्तों कार्लोस ग्लाइड और समुएल डब्ल्यू सोल की मदद से अपना पहला टाइपराइटर इजाद किया। इसके बाद आपके जहन में एक दूसरा सवाल भी आता है कि टाइपराइटर का मकसद क्या है, इसको जब बनाया गया तो इसके क्या मकासद थे। What was the original purpose of the typewriter? Typewriters were invented to make writing faster and printing and mass production of the written work easier and available for small business and individual use. Earliest writing was done on stone, clay, or metal sheet by inscribing them. दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो पुराने ज़माने में आप नज़र दोहराएं, टाइपराइटर को इसलिए इजाद किया गया था ताकि लिखने को तेज़ और प्रिंटिंग के काबिल बनाया जाए
اور مصنفین کے بڑے پیمانے پر تیاری آسان ہو اور چھوٹے کاروباری اور انفرادی استعمال کے لیے دستیاب ہو۔ ابتدا میں آپ سب کو معلوم ہوگا کہ شروع زمانے میں لوگ اکثر اپنی تحریریں پتھروں پہ لکھتے تھے، مٹی پہ لکھتے تھے، دھات کی چادروں پر تحریر کر کے لکھ دیتے تھے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ تھی ٹائم بچانے کے لیے۔ اس کا مقصد تھا کہ ٹائم انسان کا بچ جائے اور جلد از جلد یہ بنے۔ ٹائپ رائٹر کی ایجاد کس نے کی اور کیوں؟ Who invented the typewriter and why? Christopher Latham Scholars. The invention of typewriter was one of the most vital and revolutionary inventions of the 19th century. Christopher Latham Scholars invented the typewriter in the 1867. However, it was introduced commercially in the year 1874. Although it took around 10 more years to commonly used it in offices. ٹائپ رائٹر کی ایجاد 19ویں صدی کی ایک انتہائی اہم اور انقلابی ایجاد تھی۔ کرسٹوفر شالز نے 1867 میں ٹائپ رائٹر ایجاد کیا، تاہم یہ تجارتی طور پر سال 1974 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ دوستو، اس کی ہسٹری بتانا آپ کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ میں کمپیوٹر کی طرف لے کے جاتا ہوں، کمپیوٹر کی کی بورڈ کی طرف۔ ایک اسکل ہمیشہ پریکٹس کرنے سے سیکھا جاتا ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ لگ گئی ہوگی اور آپ اس پہ پورا بھی اتریں گے اور دل لگا کر کریں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ فنگر فنگر کہاں پہ رکھ کے آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ آپ کی فنگر جو ہے پھر چھوٹی والی فنگر آپ نے یہاں رکھنی ہے اے پہ، رنگ فنگر جسے کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ کی، اس کو ایس پہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ فنگر جو ہے مڈل فنگر، یہ آپ کی ڈی پہ ہونی چاہیے۔ یہ فورتھ فنگر جو ہے یہ آپ کی ایف پہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کی ایک چھوٹی فنگر جو ہے اسمال فنگر، یہ آپ کی سیمی کولر پہ ہونی چاہیے۔ یہ رنگ فنگر جو ہے رائٹ ہینڈ کی، یہ ایل پہ ہونی چاہیے۔ اور یہ مڈل فنگر جو ہے یہ آپ کی کے پہ ہونی چاہیے۔ یہ فورتھ فنگر جو ہے آپ کی یہ جے پہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مشورہ اور دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ دی ایسے، یہ اور یہ دوسرے سائڈ سے یہ رکھ دیا آپ نے۔ یہ آپ کا سٹائل ہوگا، ہاتھ کو کبھی بھی نیچے نہیں رکھنا، اوپر سے فری رکھنا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے سہارا نہ لیں۔ آپ نے جب آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا تو آپ ہاتھ فری چلے گا، نیچے ہونے سے آپ کی ہاتھ تھک جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ہاتھ آپ کے اوپر ہونے چاہیے ایسے پریکٹس کے لیے۔ تو پھر دیکھیں آپ، یہ ہوگا آپ کا، میں پھر آپ کو پریکٹس کر کے بتاتا ہوں۔ ASDFGF اسپیس سیمی کولن LKJHJ، ASDFGF اسپیس سیمی کولن LKJHJ، ASDFGF
सेमीकोलन LKJHJ, ASDFGF, सेमीकोलन LKJHJ, ASDFGF, सेमीकोलन LKJHJ। ये आपने साथ साथ मुंह के साथ बोलना भी है ताकि आपको ये याद भी हो जाए, और साथ साथ फिंगर भी आपकी प्रैक्टिस, फिंगर की प्रैक्टिस हो और मुंह की भी प्रैक्टिस हो। ASDFGF, सेमीकोलन LKJHJ, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। ये आपका कीबोर्ड है, देख लें, ये आपका माउस है, ये सामने मॉनिटर है, और ये नीचे CPU है। ये 4 चीज़ें इसके साथ रिलेटेड है। साथ इसके प्रिंटर भी होता है, वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जो कुछ काम आपने किया उस पर वो बात की बात है, बाद में आपको समझाऊंगा कि प्रिंटर का क्या फंक्शन है। प्रिंटर के बगैर हो ही नहीं सकता, इसीलिए अब हम ये फीडिंग कर रहे हैं। तो ये सर यहाँ इस हद तक आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक। बाकी डिटेल में आपको बताऊँगा। इसको सेव करना, कॉपी करना, वो बात की बातें हैं। आगे नहीं जाएंगे, मेरे साथ रहना, तरतीब के साथ मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ आपकी दिलचस्पी ही आपकी दिलचस्पी ही मुझे मजबूर करेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने स्टूडेंट बच्चों की तरह होते हैं, बच्चों से उम्मीद रखता हूँ कि आप दिल लगा के ये याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फजूल नहीं बैठना। आजकल के वबा भी है, तो आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप इन दिनों में ये सीख लें। तो वैसे इसके अलावा भी आपने टाइम लाजमी देना है। टाइम के बगैर कुछ भी नहीं होगा। ये सख्ती से मैं आपको ताकीद करता हूँ कि इसको टाइम देना है आपने। अगर आपने टाइपिंग में मास्टर बनना है तो इसको टाइम देना है। तो ये वादा मुझसे आप करें, और ये वादा मैं करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको मैं मास्टर बना के निकालूंगा यहाँ से। आपको मैंने साथ साथ MS वर्ड सिखाऊंगा, साथ साथ इन पेज उर्दू प्रोग्राम, और साथ साथ कोरल ड्रा डिज़ाइनिंग का, ये तीनों में मैं आपको माहिर बनाऊंगा। आपको इतने काबिल बना दूंगा कि आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि ये काम नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले प्रोग्राम में मैं आपको सेकंड लेसन भी दूंगा, और उसके साथ साथ कुछ टिप्स भी देता रहूँगा। आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी होगी। तो आखिर में मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और आप दोस्तों भाइयों में इसको शेयर करेंगे ताकि इससे और दोस्त भी और स्टूडेंट भी मुस्तफ़ीद हो सकें। कंजूसी नहीं करनी। मेरे पैगम्बर की हदीस है कि ख़ुद सीखो, दूसरों को सिखाओ। इस एक हदीस को देख कर इसी पर अमल कर ले तो हमारी ज़िंदगी भी बन सकती है। इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करने में किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी, और बेल आइकॉन को भी साथ प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप किसी क्लास को मिस नहीं करें। इंशाल्लाह अच्छी दुआओं के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। मगर रुखसत होने से पहले आपके लिए दुआया कलमात, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आपके दाएं बाएं रिश्तेदारों सबके साथ आप बेहतरीन सलूक करें। और इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करता हूँ। अगली आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार करें, बहुत जल्द आ रही है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये आप फिर भी एक वीडियो देख लें कंप्यूटर पे।